So we are live now. Oh, perfect. Okay. Hello, everyone. Thank you, Kapil, for having me. It's Thank always you. amazing listening to you talk, listening to you speak, the ideas you come up with. Huge fan. Okay. Thank you, Chandni, for coming live at this moment and on a very short notice. Because we wanted to hear you, my audience wanted to hear you, and at this time, we know people must be sleeping, but people will watch this interview and this talk after they will wake up. So we have some exciting questions to ask from you, and first I will ask you to introduce yourself. Okay. My name is Chandni Said, and right now I have a business, a successfully running business, and that is some tips that what how I got here, where I began, what skills are needed. That is something that we're going to be discussing in today. Basically, it's going to be all about what your career path is, how you can make yourself more aligned to your career path, because a lot of times when you start off your career, you get really confused. You don't know what path you want to go. You have everyone pulling you in different directions. Koi kehta hai doctor ban jao, koi kehta hai engineer ban jao. And there's just a lot of pressure from our families and friends and cousins to just get into something and start making money, Hmm. which is not wrong, because I believe that in order to actually get where you want to be, there are certain things that you need to learn. There's some certain skill set that you need to acquire, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप theory से पढ़ नहीं सकते. You can have all the education in the world, but if you don't have a skill and if you don't know how to utilize that skill in the right way at the right time with the right people, pretty much it's just like you're never going to use it. Hmm. So today we're going to talk about how exactly we can bring all these things together and produce something creative for our own self-development. Exactly. Uh, So but that's first, I what would it's going to like be about. to know how you started this journey from Pakistan to USA and doing these wonders and being an entrepreneur. You have vast experience of working with so many companies, like you work with software companies, social media, and you have diversified portfolio. And from that portfolio experience, now you are an entrepreneur. How was this journey? Well, first of all, I would like to thank Allah Ta'ala for whatever I have today, because it's because of His will and some of very nice, excellent decisions that I've made in my life. In order to begin, I think the first thing, इंसान को खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए. इंसान को खुद पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और उसको इतना फर्म होना चाहिए अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो अचीव कर सकता है वो हर चीज जो वो चाहता है. Speaking of me particularly, my career from TRG, most of you don't know about it, but a lot of you do, because let me give you a little bit of background of what TRG is. Actually, TRG is business process outsourcing. होता यह है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट? सबको कॉस्ट कट करनी है, so they look for cheaper solutions. So that's where the third world countries come in: Pakistan, India, Bangladesh, Thailand. Pakistan के अंदर TRG is one of the business process outsourcing companies that I know of and that I have begun my journey with. तो बहुत ही मामूली से स्टार्ट किया मैंने. I was 18 years old. I remember जब I was a customer service executive in TRG, एक बहुत ही अच्छी international campaign में. I got really good bosses. Now, one more thing about bosses is you don't pick a good job, you pick a good boss. Because if you don't have a good boss, you're not going to take it from me. I mean, that is something I've learned. If your boss does not want you to grow, you won't grow. Exactly. और दूसरी चीज ये, once you start working on something, उसको पूरे दिल से करो. अगर आपकी जॉब सिर्फ एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी है ना किसी कंपनी के अंदर, उसके अंदर भी अपनी दिल लगा के काम करो. Like, be the best at your thing. Have all the knowledge there is to know. Because a person who is known and well knowledgeable, a person who has all the information, has the power. So what that means is
you're not going. When you start from something, just make sure that you start from anywhere. It doesn't have to be something big. It doesn't have to be something superior. It could be something really basic because you're just starting, and that's okay. You keep on learning and growing. So I would like to say कि ज़्यादातर जो grooming, जो एक corporate grooming होती है ना, when you go into the corporate world, तो किस तरह से बात करनी है, रहन सहन, how do you talk to people, how do you look presentable, how do you give an aura of competence, कैसे लोगों को लगेगा यार आप काम के बंदे हो, you know, and that is all done शुरू में. ये आपकी ना बेसिक बिल्डिंग होती है. So it's very important कि जो पहली जॉब आप पकड़ें, it has to be with the right people. It has to be with bosses that care for you, that actually give you a platform to showcase your skills. ठीक है, तो you gotta make sure कि जब आप पहली जगह किसी पे जॉब करने जाएं तो you need to understand कि okay, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, what next? I have to utilize my skills to the fullest. So you start learning because learning never stops. Learning only stops when you die. उससे पहले learning does not stop. So I think that is pretty much where I got all the good from, where because those people, they groom you. They actually groom you to be on the next step. Make sure that you just given your 100%. फिर क्योंकि once you come into your first job, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं. यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है कभी-कभी, you know, that you have to deliver. आपको सबसे बना के भी रखनी है, आप नए भी हो और आपको अपने आप को प्रूव भी करना है दूसरों अपने लिए, खुद के लिए. हाँ, you know, है मेरे अंदर ये स्किल और मैं करूंगा, I will do it. So I think TRG is where I started. And then what happened was, luckily I had a lot of exposure. I went to different places where I could work. I went to Starsoft, I went Exact back in the day for very few months time. And then I went to different, I actually worked with a couple of other IT companies as well in Karachi. And then I realized after 8 years of extreme hard work, of knowing people, of everything, I thought to myself, Chandni, now you have the skills to actually work on your own thing. You are actually now capable and you know enough people. You have enough skills to actually start something of your own. Let me tell you something. ये बहुत बड़ा step है मेरे लिए. बहुत बड़ा, क्योंकि एक stable income आती जाती, आपको पता है आप अच्छी position पे हो, सब कुछ है. And then you just decide कि नहीं, अब से नहीं होगा ये, अब से मुझे खुद के लिए कुछ करना है, something that is my own, something that I will nurture and I will grow. And that's when I made the big move. That's when I did that. Okay. And these days, if you meet every next person, he or she want to be entrepreneur, but rarely. So we can say very few people actually going to made it. Like I worked with venture capital as well, so I know this ecosystem of Pakistan, entrepreneurial ecosystem of Pakistan. Everyone want to be entrepreneur, but they don't know how to do, what to do. Even though we had a question from Mr. Naveed Rahman, how to be become successful entrepreneur. So in Pakistan, everyone have this question: how to become successful entrepreneur? What are the three, you can say, hardcore skills that a person need to have to be a successful entrepreneur or be an entrepreneur? Absolutely, yes. I would love to answer that. I think number one is customer service. Customer service is the most underrated skill that I think कि लोग ना इसको ज़्यादा value नहीं देते. I don't understand why. क्योंकि आपका business आप नहीं चला रहे हो, वो लोग चला रहे हैं. आपका interaction लोगों से होगा. आपका interaction होगा उन लोगों से जो आपके साथ काम करना चाहेंगे, जो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे. क्योंकि कोई आपके साथ काम करना क्यों पसंद करेगा? There's so many people in the market. So number one, I would say कि customer service, लोगों को बहुत ही इज्जत से, प्यार से उनसे बात की जाए. मतलब क्योंकि a lot of people say कि उम्मीद पे दुनिया कायम है. I believe इखलाक पे कायम है. क्योंकि अगर आपके पास इखलाक नहीं है, तो फिर आपके साथ कोई काम करना पसंद नहीं करेगा. कोई पसंद नहीं करेगा कि वो आप पे भरोसा कर सके. So I think customer service and taking care of people is the number one thing that keeps a business going.
Number two, I would say the right decisions. Sometimes you have to take decisions. You have to keep everything under check. So, and making right decisions is definitely something that would make you successful. And right decisions can be a hard decision too. Oh, absolutely. Right decisions are, whenever you have to make decisions, they're not easy. Sometimes you have to make difficult decisions. And us waqt, you just have to decide what is more important. So it's very important to plan. Third is planning. बहुत जरूरी है कि दिमाग में नहीं तो मतलब at least on a piece of paper or at least on something solid, you should definitely have a good business plan. And once you make that business plan, make sure you talk to people of the same industry to make sure कि यार ऐसे ही काम चलता है, क्या ऐसे ही होता है सब. And that's it. Once you have your business plan, your customer service skills, and making the right decisions, I think you're all set. But let me tell you something. This thing does not come overnight. आप ये expect नहीं कर सकते कि एक दिन के अंदर बस आपके अंदर सारे skills आ जाएंगे. नहीं, बहुत मेहनत लगती है. ईगो मारना पड़ता है. बहुत जो है आपको बहुत सारी sacrifices देनी पड़ती हैं. बहुत बातें सुननी पड़ती हैं. क्योंकि anytime you see someone on the top, it always makes you wonder कि ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि ये वहां पर है. And trust me, it does not come easy. It does not, but it's worth it. And third thing? Third thing was planning. Second was yeah. Second was decision making. Yes. अच्छा, एक और पाकिस्तान में मिथ कह लें या ट्रेंड कह लें कि फैमिलीज अलाउ नहीं करती बच्चों को टू, अगर किसी की फैमिली है फ्रॉम पीपल आर फ्रॉम बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, सो दे कैन कंटिन्यू देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी. बट अगर वो उनके पेरेंट्स जो हैं जॉब करते हैं तो दे वांट देयर किड्स टू बी अ, you can say, employee or something like that. So how to convince, you can say, parent factor? Pakistan में parent factor बहुत ज़्यादा है. Absolutely, I completely agree with it. I think I've been very lucky in this regard. My family has been extremely supportive of whatever I do, which is why I'm so successful when it comes to this particularly. And I'm still learning. It's not like I know it all. I'm still learning, and I will keep on learning. Parents, I think, this comes from, I think this is like more of a grooming issue. क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ज्यादा होता नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो कि आप क्या करना चाहते हो, या पेरेंट्स खुद आए आपके साथ डिस्कस करें कि बेटा तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें जॉब करनी है, क्या तुम्हें बिजनेस खोलना है, क्या तुम्हें कॉमेडियन बनना है, क्या करना है तुम्हें. ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है कि बस अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीसें भर दी, अब तुम जल्दी से जॉब पे लग जाओ ताकि हम ये सब कर्जा उतार सकें और घर ले लें. और नहीं, मतलब and that is how it is. I'm not blaming those parents, I'm not blaming those children. All I'm saying is there could be a different approach. Maybe if your parents are not coming to talk to you, you go to them, you tell them what you want. उनसे बात करो. I think communication एक ऐसी चीज है जो बहुत underrated है. अगर लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में सही तरह की कम्युनिकेशन हो तो आई थिंक ये इजीली गैप्स फिल हो सकता है इस चीज से. You make them see your side of the story, but you also need to understand where they're coming from. They have spent their lives for you, so they're not going to just ऐसे नहीं मान लेंगे कि हाँ बेटा आप ठीक कह रहे हैं. नहीं, आपको समझाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा. That's where the patience comes in. और आज ही मैं हार्वर्ड की एक केस स्टडी रीड कर रहा था, तो उसमें लिखे हुए थे वो कौन से टॉप 10 स्किल्स हैं जो कि 2020 और 2021 में यूटिलाइज होने वाले. तो टू माय वंडर उसमें जो फर्स्ट रैंकिंग पे था वो था कम्युनिकेशन. Well, it's all the same. It's all about communication. Like आप अगर from sanitary worker to a prime minister, everyone needs communication. So communication have a great part in being a successful, you can say, employee or entrepreneur. अच्छा, एक और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आजकल बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे, कैरियर चॉइसेस पे. So in your view, what career choices should they have, and if you talk on this area? I believe career choice is a very sensitive decision. It's a very sensitive decision because and it's not something जो आपको ऑटोमेटिकली आ जाए. जैसे अब आपको पता है आपका फाइनल ईयर है, अब आप आगे क्या करना है. तो होता ही है कि दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कजन्स क्या बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसा किसमें मिलता है. आई थिंक बहुत सारी बात हम ये चीज रियलाइज नहीं करते कि अगर वो हमारी कॉलिंग नहीं है ना,
अगर हम कंफर्टेबल नहीं फील करते उस जगह पर, उस सिचुएशन में या उस काम को करते हुए, तो हम उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी चीज है हम्म। कि अगर तो हमें दिल से नहीं, अगर दिल से काम करोगे तो संडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। So I think that's my say on this. ओके। एक और इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मार्केट एंड यूएस मार्केट? यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ मार्केट्स। Are you speaking in terms of corporate? इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट। Okay, that's a very good question. अच्छा, होता ये है कि जितने लोग हैं, हम सब जितने लोग हैं दुनिया में, आई थिंक we're all the same. We want respect. We want, हम अगले को एज अ कंपटीशन भी देखते हैं। और अगर तो पाकिस्तान के अंदर अगर कॉर्पोरेट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, ट्रस्ट मी, इज नो डिफरेंट, इट्स नो डिफरेंट। बट आई थिंक the best way to possibly deal with this is self-control and self-mastery, which means कि अगर आप सही है ना, and if you're doing your work right, and other people are still giving you a hard time, because I know from personal experience, whether you talk about Pakistan, you talk about America, that people who are at jobs, they have, they have problems, they have their own share of problems. Sometimes आपको boss अच्छे नहीं मिलते, sometimes you get a lot of pressure, sometimes you don't even get recognized for the things that you do, and I believe that, trust me when I say this, that this is all a learning phase. If where you are, you're not being appreciated, just know कि ये भाई ये आपका एक इम्तिहान है, ये आपको पेशेंस सिखा रहा है, ये आपको सिखा रहा है कि दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल चीजों में कैसे रहा जाता है, लोगों से कैसे डील किया जाता है। अगर आपको, आई थिंक इंसान अपने अंदर नहीं देखता कि व्हाट इज विद देम, दे जस्ट वांट टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, ऑल्दो आई डोंट, एंड समटाइम्स इट्स जेन्युइन, समटाइम्स ऐसा वाकई लोगों के साथ होता है कि जॉब्स में उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता, वो खुद सोचते हैं, खुद कहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं नहीं सही हो रहा। So if you're in that situation, I want you to know that this is just a test and this is not your final destiny. Kyunki obviously things change, you're going to learn, you're going to evolve, and then ye jo itni I guess jo problems hongi, they're not going to seem so big a while. But if you're constantly going through problems, I'm sorry, go ahead. अच्छा, कल्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं पाकिस्तान में। हम कहते हैं कि वी हैव अ गुड कल्चर अगर हम यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर हम अक्सर ये मैं इसको कहूँगा बहुत ही देसी वर्ड है, भाषण दे रहे होते हैं कि आप कभी बाहर चले जाएं, वहां जाके देखें कल्चर क्या होता है। सो यू आर हेयर एंड नाउ यू आर देयर। वो जो हमारे पास एवरी नेक्स्ट पर्सन इज कॉलिंग के आप जाएं तो सही बाहर की दुनिया में देखिए क्या हो रहा है, वो बाहर की दुनिया और पाकिस्तान में क्या वाकई डिफरेंस है? इन नॉट इन टर्म्स बहुत ऑफ different. टेक्नोलॉजी बट इन टर्म्स ऑफ कल्चर। Actually, in terms of culture भी बहुत difference है. I've spent a lot of time in companies जहाँ पर literally my bosses would scream and yell and shout and just be plain disrespectful because they wanted to, because they could, because it's their company, so they could. यहाँ पर एक चीज के बारे में तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि कोई आपसे जो है ना बदतमीजी नहीं करेगा. They will treat you like a human being, like how you're supposed to be treated. It doesn't matter आप क्या करते हैं, आपका काम क्या, आपकी पोजीशन क्या, आपको वही लेवल रिस्पेक्ट का दिया जाएगा. मतलब you cannot, I think my experience working with the locals over here is mostly good. It's good. They know how to treat people. Politics हर जगह है. So it's not as if के सिर्फ पाकिस्तान की कॉर्पोरेट में ही है. No, politics हर जगह है. लेकिन एक जो होती है ना डाउनराइट बदतमीजी, डाउनराइट, वो यहाँ नहीं है. It's not like you can sue a person. You can literally sue a person. You can, the HR over here, from what I've seen, is very, very helpful when it comes to these matters. Extremely helpful. ओके ओके। अच्छा, तो मतलब वहां पर जो हम सुनते हैं शायद ये रियलिटी भी है। अगर मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि आप खुद एक वुमेन हैं और यू बिलोंग फ्रॉम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट को कुछ और सिनेरियो में लिया जाता है, दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे लिया जाता है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है?
जो आपने वहां रह के सीखा? I honestly think that women over here are treated no different than men in some cases. Because, like I said, it's a vast world, there's millions of people. But I think my general outlook would be, as a woman, people over here at my work have supported me to come to the position of authority because they thought I deserved it. And even in Pakistan, I've had some very strong women mentors that I have worked with, that I was inspired by. So I would like to say that this is the era where women are actually coming out. It's kind of like जैसे 60s के अंदर शुरू शुरू में ऑफिस स्टार्ट हुए थे, अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं, 60s के अंदर ऑफिस स्टार्ट हुए थे, women started coming forward, सब ऑफिस आते थे, लेकिन women didn't have too much power and positions of authority back then. Now they have their chances, and if they want to thrive in this male dominated world, they have all the chances they need. Obviously it's going to require a lot of work. अच्छा, पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अगर कोई सजेशन देना चाहें, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं पाकिस्तानी वुमेन्स भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या सजेशन होंगी? हाउ दे कैन गेट दिस वुमन एम्पावरमेंट, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है, हाउ? बिल्कुल, और डेफिनेटली ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कपिल, के मांगने से कुछ नहीं मिलता, आपको छीनना पड़ता है. सो मेक श्योर दैट यू आर हेड स्ट्रांग. एंड एक चीज टू ऑल द लवली लेडीज आउट देयर जो अपने करियर के बारे में सोच नहीं और आगे बढ़ना चाहती हैं, डू नॉट बी स्कैर्ड. डू नॉट बी स्कैर्ड एंड यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग. जस्ट डू योर वर्क राइट, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. और आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक टू से. ओके, और अगर हम बात करें पोस्ट पैंडेमिक की, अब पैंडेमिक की यहाँ तो बहुत बुरी सिचुएशन है, लॉकडाउन है, वहां पर क्या सिचुएशन है और वहां पर आप क्या समझ रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक? क्या कुछ चीजें चेंज होने जा रही हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव हो या आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव हो या तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हो? There would be a huge shift when it comes to post pandemic, because right now honestly I think people are scared. People are scared to lose their jobs, people are scared of being unemployed, people are scared to just not provide for their family. I think एक इंसान का सबसे बड़ा हॉरर यही होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड ना कर सकूं. तो इस सिचुएशन के अंदर I think the best advice would be to not create panic and to learn a new skill. लेट्स से आप मार्केटिंग के अंदर हैं, गूगल के ऊपर इतने सारे कोर्सेज हैं, लिंक्डइन के ऊपर इतने सारे कोर्सेज हैं, एनहांस करें अपने स्किल्स और एनहांस करें, ताकि अगर ये जॉब चली जाए, अल्लाह ना करे, तो द मार्केट इज ओपन टू यू. पीपल नो हु यू आर, पीपल नो यू फॉर योर वर्क, फॉर द स्किल्स दैट यू हैव. सो हमेशा आई वुड सजेस्ट यू शुड जस्ट, लाइक आई सेड शुरू में इस पूरे सेशन के, कि इट्स द पीपल दैट रन योर लाइव्स, आपके आसपास के लोग. सो यू मेक श्योर दैट द पीपल अराउंड यू थिंक यू आर कॉम्पिटिटिव इनफ. क्योंकि कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे यूएसए हो, कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. आई वुड से यूएस में बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है और वहां पर भी है डेफिनेटली. और अब ज्यादा होने जा रहे हैं, क्योंकि जो जितनी ले ऑफ्स अभी मैंने देखी हैं रिसेंट टाइम में, शायद लास्ट मंथ में मैंने जितने ले ऑफ्स देखे हैं वो सारे एक्सपर्ट्स थे. अगर उनके ले ऑफ्स हो रहे हैं तो अब जो फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में जॉब सीख कर रहा था, तो उनके साथ कंपटीशन में वो लोग होंगे जो एक्सपीरियंस्ड है, सो दे विल हैव मोर चांस टू गेट जॉब्स. तो ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, इनको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है शायद उन जॉब्स को. Absolutely, I would suggest ke get whatever your respected career path is, start getting certifications on it, start educating. जब आपके पास knowledge आ जाए ना, तो do not hesitate to spread it, क्योंकि जब आप knowledge spread करते हैं तो it does something wonderful. People look up to you, people know that you know, so that's how you start creating and building the trust with the people that you need to. So I would suggest ke really invest in your skills, and whenever you get a chance, help someone, teach someone. अगर आपसे भी कोई जूनियर है और उसको नहीं समझ में आ रहा, advocate करें उसको, you know, just go ahead and just try to make life and things easier for them, because when you create ease for others, God will create ease for you, and that's how it works. अच्छा, एक और सिनेरियो आ रहा है कि आई वुड सजेस्ट के
ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक और आफ्टर दिस पेंडेमिक हम जॉब्स पे कम फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस करें, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप आपका पे फोकस पर्सपेक्टिव करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे जो मिलते हैं वो कहते हैं जी मेरे पास, हमारे पास पैसे नहीं है, इवन दो दे हैव क्रिएटिव आइडियाज, दे आर लैक ऑफ मनी, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? That's a very good question. Like I said, it's the people you know. Even if you don't have money, but you have skills, you need to find the right people that would encourage that skill. Trust me, people who have money will invest in you if they see the potential. People do. और आपका बिल्कुल सही कपिल ख्याल है कि लोग अब जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और ये सच है। और यही मतलब आई थिंक आई वुड लाइक टू थिंक दैट also that this is the future for some people. So पाकिस्तान it में भी depends. अब मैं शायद क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत सारी वुमेन कॉन्फ्रेंसेस और जितने भी टेक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंस शायद मैं पूरे पाकिस्तान ही घूम के आया हूँ जितने भी। Give me 1 second. श्योर Yeah, I was just getting a charger. Hold on, please. श्योर। तो पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस विजिट की हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार्स विजिट किए हैं। तो मैंने हर जगह पे यही देखा है कि अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। इवन दो पाकिस्तान में इतनी कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती थी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, और इवन दो मैं जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स में जा रहा हूँ वहां पर शायद हर दो में से एक जो स्टार्टअप फाउंडर है वो वुमेन है। तो दे आर अ लॉट, बट स्टिल देयर इज अ मेजर चंक जो नहीं आ रहा घर से। शायद अभी भी वुमेन्स ये सोचती हैं पाकिस्तान में, जो कॉमन वुमेन है, लेमेन है, वो ये सोचती है कि शायद मेरे लिए बिजनेस नहीं है, बिजनेस एक मैं कह सकता हूँ कि मर्दों का काम है, हम औरतों का काम नहीं है, जो कॉमन लेमेन यहाँ पे बोलते हैं। तो उन जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती है वुमेन्स, उनके लिए क्या सजेशन होगा, हाउ दे स्टार्ट? I think it depends. देखें, it's a very vast statement क्योंकि it depends on what your skill is. For instance, अब हम एक कॉमन वुमन की बात करते हैं, हो सकता है वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मे बी उनका खाना इतना सारे खानदान में तारीफें हों। Why can she not become an entrepreneur? एक फेसबुक पे पेज ही तो लगाना है कि भाई मैं डिलीवरी कर रही हूँ, आप ऑफिस का खाना मुझसे बनवा लें। That's it. एंड इट्स नॉट दैट सिंपल। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एक पहला वो जो कदम होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है। और अगर आप वो पहला कदम ले लेना, उसके बाद सब इजी होता है। सो इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग दैट यू थिंक यू आर टैलेंटेड एट, आई वुड से वो पहला कदम लें, वो पहला कदम लें, और देन आपको ऑटोमेटिकली समझ भी आ जाएगी और मदद भी मिलेगी। बी इन फ्रंट ऑफ पीपल, टेल देम व्हाट यू वांट टू डू, सो गो अहेड एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप। अच्छा, आपकी कंपनी अभी किस स्टेज पे है? आप क्या एक्सपेंशन सोच रहे हैं, द करंट बिजनेस यू आर डूइंग? Actually, right now we are actually expanding. We just bought an office over here in California. तो अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनसे पार्टनर करूँ, उनके अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करूँ, एंड देन ऑब्वियसली इफ आई मेक मनी दे मेक मनी. So I think that those are my future plans. So I need to go ahead and see who is willing to work with me because I bring some really good ideas. Definitely. अच्छा, तो आप सोच रही हैं कि पाकिस्तान में भी जितने आपके क्लाइंट्स थे उनको कैटर करें और दोबारा से उनके साथ आप वर्किंग रिलेशनशिप कंटिन्यू करें? Actually, not exactly clients. I'm looking for partners. Clients तो मेरे US के Okay. होंगे. So I want US clients, but I want partnership with Pakistani people, people I can trust. People. तो ये पाकिस्तानी क्लाइंट क्यों नहीं हो सकते? ये पाकिस्तानी क्लाइंट हो सकते हैं, बट उसके अंदर जो है ना एक वो आ जाता है कि जितने मतलब I think it's mostly because it's the pricing issue. Because if they can pay people over there to work, and if I'm getting US clients, obviously the payout would be different for me and my partner and my employees. It would be different, and I want to give them the best. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, नवीद रहमान है, हमारी लाइव कन्वर्सेशन देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अगर हम इसको जल्दी से देख लें कि वो ही सेइंग आई एम अ बैंकर, मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है 6 इयर्स का, कस्टमर सर्विस में 12 इयर्स हो गए हैं, लेकिन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, जिसके पास सोर्स होती है वही ऊपर आता है। और आप क्या कहेंगी, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसके पास सोर्स नहीं है? तो
इसको आप ही आंसर नवीद, करें। पहली चीज तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये एक हार्श बिटर रियलिटी है हमारे मुल्क की, कि अगर तो आपकी सोर्स नहीं है तो गॉड हेल्प यू। और जब भी मैंने इस कॉन्वर्सेशन के शुरू में कहा था कि इट्स द पीपल विल टेक यू फॉरवर्ड, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, you don't need to do much, you need to just change your perspective on how you promote yourself. आपको पता है आप काबिल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, you just need to be in front of the right people. अब जिनको सोर्स मिल रही है वो अपने हिसाब से अपने लोगों के, सही लोगों के सामने, क्योंकि उनको सोर्स मिल रही है, वो उनके सही लोग हैं। आपके सही लोग कहाँ हैं? आप अपने अच्छा, सही लोगों को ढूंढें और देखें। इनका एक और सवाल है कि पाकिस्तान में तो सोर्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, रेफरेंस की। क्या वहां भी ऐसा होता है यूएसए में? रेफरेंसेस काम करते हैं नहीं, वहां पे? रेफरेंसेस वो आपसे पूछते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत के ऊपर आपको काम मिलता है। और जहां तक मैंने पाकिस्तान के अंदर काम किया है, एंड ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आई एम अ फीमेल, I did get a lot of chances and I did not get them on source. I got them on skill. So I guess it's different. It's different for males and it's different for females. So I also think that sources तो पाकिस्तान में चलती हैं, तो शुरू से चला आ रहा है ना। दिस इज लाइक जब से कंट्री बना है तब से सोर्सेज चली आ रही हैं। ये आप एक दिन इसको खत्म नहीं होता। और अमेरिका के अंदर you are actually, you they look at the skills that you have, they look at the experience you have, and they hire you. It's that simple. अच्छा, आप क्या सजेशन देना चाहेंगी यूथ को? मतलब हमारे पास सिर्फ टिकटॉक पे ही शायद पूरा पाकिस्तान चल रहा है। मैंने देखा लॉकडाउन में, अगर हम Actually प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसकी तो हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दिस टिकटॉक वर्ल्ड? मतलब कोई आई मोटिवेशन ही नहीं है देखिए, उनके लिए। हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। हो सकता है जिस ऑडियंस को आज हम देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, मे बी लेटर डाउन द रोड, क्योंकि देखिए टिकटॉक इज एन एंटरटेनमेंट। हमें जो जिंदगी की हार्श रियलिटीज होती हैं उनसे भागने के लिए एक एस्केप चाहिए होता है। टिकटॉक एक एस्केप है। So if you want to escape, you want to enjoy your time, do it. लेकिन since everyone is going to, everyone's going to someday, depending on their own life, realize कि भाई अब कुछ solid करना है, they'll come back. Trust me, everyone मसला has ये their है own timeline. इस पे शायद मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन इसलिए है कि मसला ये कि एक एक घर में ना पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, एंड ड्यू टू दिस माशाल्लाह। ह्यूज पॉपुलेशन एक एक घर में ना बहुत सारे लोग हैं। शायद एक अर्निंग हैंड है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री हैं, वो उन्हीं के पैसों पे चल रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि एक अगर कमा ले अच्छा तो बाकियों को काम नहीं करना पड़ता। सो दे आर लेस And I कंसर्न, think क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है। दे मतलब उनको पूछता हूँ क्या करना है, देखेंगे, मतलब कब देखेंगे, नो आइडिया। क्या कर रहे हैं पता नहीं, बीकॉम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं। तो ये वाले जो हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है पता नहीं, इस ये पता नहीं वाली जनरेशन का क्या करना है? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली होता ये है, और आई वुड एक्चुअली look at the family, क्योंकि अगर you're a well settled family, you don't need to do anything. और अक्सर ये भी होता है कि लाइक आई सेड, हमारे यहाँ ना देसी पेरेंट्स में, ब्राउन पेरेंट्स में कल्चर ऐसा है नहीं कि बच्चों को बैठ के उनसे बात की जाए। लोगों को लगता है कि बस डांट दो, चीख दो, चिल्ला दो तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चा मान जाएगा। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू सिट विद योर चिल्ड्रन, यू नीड टू, उनकी स्किल्स आप देखें ना, एज अ पेरेंट आप देखें, आप, मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, डू यू इवन नो व्हाट योर किड्स आर डूइंग, यू नो। मतलब, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी मैं देख रही हूँ कि ट्रेंड चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पीपल आर बिकमिंग अवेयर बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि अब अवेयरनेस आ गई है कि पहले जमाने में 60s के अंदर, 60s और 70s के अंदर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बिकम रिच। बहुत बुढ़े बुढ़े लोग होते थे जिनकी कोई यार्ड हो गई या घर हो गए। अब 24 साल के मिलियनर्स हैं आपके पास, आईटी का दौर है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो इफ यू आर नॉट मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, दैट्स ऑन यू, नो वन एल्स, जस्ट यू। बिल्कुल। तो ये सारा कसूर उन्हीं का है जो कुछ नहीं करते। ओके जी। उसके अंदर नहीं, उसके अंदर फैक्टर नहीं, नहीं, होल्ड ऑन, उसके अंदर फैक्टर्स भी आते हैं कि अगर फैमिली जो है वो भी सपोर्ट करे, अगर, या दोस्त सपोर्ट करें। कपिल, एक ऐसी चीज है जो आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते लोगों का, वो वही रहेगा। तो बेहतर यही है कि लाइक फॉर इंस्टेंस, लाइक हाउ यू आर हैविंग this conversation with me right now, there's so many people watching, but it's because they are interested. तो हर किसी का ना ग्रुप बन चुका है
कि टिकटॉक वाले जगह हैं, जो प्रोफेशनल हैं वो अपनी जगह है, जो बिजनेस करना चाहते हैं वो अपनी जगह है, जिनको जॉब में जाना है वो अपनी जगह, सबके ग्रुप्स हैं, सब अपने अपने टाइम के हिसाब से आई थिंक चल रहे हैं, दे आर सेटलिंग इन। अच्छा, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी जिसको आप इजीली चलें, ग्रेप कर लें और कुछ कर लें, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। ये जो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो वो होते हैं जिनके क्रिएट एन सामने अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी वाले है। लोग वो होते हैं एक्चुअली क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी वाले लोग वो होते हैं जिनके अंदर एम्बिशन होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि हमें कौन क्या दे रहा है आकर, वो ये देखते हैं हमारे पास अभी क्या है, क्या हमारे पास हमारे स्किल्स हैं, क्या वो हमें आगे लेके जा सकते हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस हमें आगे लेके जा सकता है, क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम आगे जा सकते हैं। तो जो अपॉर्चुनिस्ट सॉरी अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, उस किस्म के लोग आई गेस they're the ones that are ambitious. I guess the only difference is of ambition. Because if you're an opportunist, then आपको पता होगा कि how to take the right opportunity. वो experienced भी होते हैं, वो समझदार भी होते हैं, वो ambitious भी होते हैं, क्योंकि why would you take an opportunity when you don't have a need for it? You are just going to let it slide by, क्योंकि आपका mindset ही नहीं है। I think हर इंसान का एक mindset होना चाहिए जो उसको आगे उसके plans पे, उसके career पे लेके चले, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैविंग अ मेंटर? Oh, having a mentor makes all the difference in the world. It makes all the difference in the world. क्योंकि एक होते हैं आपके दोस्त जिनके साथ आप चिल कर लेते हो, घूम फिर लेते हो, लेकिन फिर एक ऐसा इंसान होता है when you look up to them, you want to be like them. Find that one person. It could be your boss. It could be someone जो आप सिर्फ जिसको इंटरनेट पे देख रहे हो। एक मेंटोर तो होना चाहिए जिंदगी के अंदर। उससे ये होता है कि अच्छा, आपको मोटिवेशन मिलती है, वो रोज की मोटिवेशन आपको मिलती रहती है कि नहीं अब मुझे कुछ करना है जिंदगी के अंदर, ये देखो ये क्या कर रहा है, मुझे भी करना, अच्छा, मेंटोर का क्राइटेरिया क्या होता है? किसी को भी अगर हम मेंटोर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कोई भी एक कॉमन सा क्राइटेरिया? द पर्सन शुड बी अ गुड लीडर। ओके। They should know how to speak well, they should be a good leader, and they should know how to guide the other person. मतलब ये नहीं है कि उनसे आप ये बोलें कि आप बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर, नहीं, आप उनको जनरल नॉलेज दें, गाइडेंस दें। इट्स देयर डिसीजन टू मेक, इट्स नॉट योर कॉल टू मेक, इट्स देयर डिसीजन। अच्छा, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो अ मेंटोर और टू लर्न समथिंग, डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर मेंटोर? It depends. It completely depends on the mindset you have. If you're so impressed by the person who's your mentor, you want to become like them, you learn from them. If you feel कि यार मेरा कोई mentor नहीं है, मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैंने अपने दिमाग के अंदर फिगर कर लिया है, तो आप अपने आप को ही मिरर कर रहे होते हैं अपने दिमाग में कि मैं अपना mentor हूँ, मैं ये बनूंगा। That depends. It's ऐसे different लोग from person to सक्सेसफुल person. होते हैं? ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं I can. किस तरह के? The first or the second? जो मेंटोर को फॉलो नहीं करते और वो कुछ डिफरेंट ही करना Well, चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके mentors नहीं हैं। तो उनकी लाइफ का जो कह सकते हैं पैराडाइम है वो किस तरह का होता है, मतलब वो किस तरह चीजों को लेके चलते हैं? जिनके mentors नहीं होते, हम्म I वो क्या guess those are क्वालिटीज the हैं जो kind of ऐसे people. इंसान में होनी चाहिए? पहली चीज तो द पर्सन शुड बी अ सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ मोटिवेटर होना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा बाहर से तो आने वाला नहीं है, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपका कोई मेंटोर नहीं है, तो फिर आप अपने खुद ही मेंटोर बन जाएं और अपने आप को मोटिवेट करें एंड जस्ट गो आउट देयर। क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो 3-4 दिन से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि इसका आंसर आप ही करें, और यही आंसर है कि सेल्फ स्टार्टर ही होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, कोई पैशन होना चाहिए कुछ करने के लिए, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। आई एग्री विद यू। और पाकिस्तान में एक ट्रेंड मैंने देखा है कि हर दूसरा इंसान मेंटोर बना हुआ है। मतलब वो क्राइटेरिया जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, द रीजन इज कोई भी सीखना नहीं चाहता, इवन दो आप जिससे मिले वो सिखाना चाहता है, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो आपका सब्जी वाला हो, एवरीवन इज मेंटोर। एक्चुअली कपल होता ये है कि एवरीवन लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, एवरीवन लाइक्स टू, सब चाहते हैं हमारी वाह वाह हो, हमें फेम मिले, लोग हमें जाने उन चीजों के लिए जो हम उन्हें सिखा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन जहां पर एक इंसान ये सोच ले ना कि बस अब मुझे सब आ गया और अब मैं मेंटोर बन चुका हूं और अब मैं आगे कुछ नहीं सीखूंगा,
I think वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट है, because there is no end to learning. There's too much knowledge in the world. You cannot contain all of it. There is no way. अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। हम किड्स लर्निंग की बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल सिस्टम है, आपने अभी क्लोजली वहाँ का स्कूल सिस्टम, शायद वहाँ पे आप कुछ बच्चों से तो मिले होंगे जो हमारे Actually, मैं बेसिक यहाँ पर एजुकेशन। पढ़ी हूँ. I studied here. ओके, तो ये बेसिक एजुकेशन है यहाँ का, पाकिस्तान का और यूएसए का, उसमें क्या डिफरेंस है और हम इंडिविजुअली उस डिफरेंस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और या कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं? I think to, and ये तो मेरे दिल से बात निकल रही है इस वक्त कि to all the C brown parents के अंदर उनका साथ दें और like help them learn. जो स्कूल में सिखा रहे हैं, जो कि आप ये देखें कि आपका बच्चा किस चीज में टैलेंटेड है, उसे शौक किस चीज का है, उसे उस YouTube, आपके दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है YouTube. ऐसी क्या चीज है जो आप YouTube से नहीं सीख सकते? आप देखें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है और फिर उसके स्किल्स को डेवलप करना सीखें. ये नहीं कि बेटा आपने टेस्ट याद किया, आप मुझे ये सुना दें. नहीं, दैट्स नॉट गोना टेक देम एनीवेयर इन लाइफ. आप उनको बेसिक मोरल वैल्यूज सिखाएं, जिंदगी की, लोगों की. उनसे बात करें, उनका स्किल क्या है, उसको डेवलप करने के लिए उनको सर्टिफिकेशंस दें, उनको वीडियोस दिखाइए, उस स्किल को एनहांस करें. बच्चा भी खुशी खुशी करेगा क्योंकि वो करना चाहता है, दिल से करना चाहता है. फिर किसी माँ बाप को ये शिकायत नहीं होगी कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा या मेरा बच्चे का दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में. आप देखें तो आपके बच्चे का प्रिफर्ड पढ़ाई का मेथड क्या है. कुछ लोगों को नहीं समझ में आता भाई कि नहीं पढ़ना नहीं आ रहा उनको, एडीएचडी होता है कुछ बच्चों को, तो क्या करेंगे? क्या मार मार के उनको यही बोलते रहेंगे कि पढ़ना नहीं चाहता? आई थिंक दैट्स क्रूअल. और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अवेयरनेस आ जाए इतनी कि let children be who they want to be and support them, because in the end they're going to make you very happy and they're going to be happy people. Teach them how to be happy. अच्छा, मेरे बस 2 लास्ट क्वेश्चन होंगे जिसके बाद हम शायद इस इंटरव्यू को एंड करेंगे. द वन क्वेश्चन इज, वैसे तो खवातीन कहती हैं कि हमें सब कुछ करना है और हम कहते हैं कि इक्वलिटी है, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, औरत मार्च भी हो रहा है पाकिस्तान में भी, तो सब कुछ करना चाहती है. बट वो कौन से कैरियर्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी वुमेन्स के लिए, इजी भी हैं और वो पाकिस्तानी कल्चर में इजीली काम कर सकती है, अगर हम जॉब की बात करें तो? अगर हम जॉब की बात करें, अच्छा, तो लेकिन ये डिपेंड भी करता है ना उस हर डिफरेंट इंसान, उस हर नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं इस क्वेश्चन को और क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि मैंने एमबीए में शायद हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा. बहुत सारी लड़कियों को इवन तो लास्ट सेमेस्टर लास्ट डे तक ये नहीं पता होता है करना क्या, दे आर स्ट्रगलिंग. मैं चाहूंगा ऐसे अगर आप करियर चॉइसेस बताते हैं 4 से 5 जो कि वुमेन्स के लिए इन कंसीडरिंग दिस एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत बेहतर हो. Well, I think banking is a very respectable profession. If you want to become a banker, you want to go into investment banking, sky's the limit for all the females out there. You could do your ACCA. You can become an accountant. It's a very respectable career. You can become a doctor. Doctor bahu kisko nahi chahiye. But also for your own personal, or you know what? Let's even go to the creative art side. You can also become a fashion designer. आप अपनी लाइन खोल लें कपड़ों की, आप अपना बिजनेस चला लें. यू कैन सेल मेकअप. आप अपना पेज लें फेसबुक के ऊपर एंड यू कैन स्टार्ट. देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. एंड इफ यू आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली ऑन करियर, आई वुड रेकमेंड बैंकिंग एंड अकाउंटिंग. आई थिंक दोज आर वेरी स्टेबल जॉब्स. और जो है ना, इट्स लाइक इवन इफ यू like when I personally hear someone is in a bank, then I'm like, oh, they have a very and देखो, having an entrepreneur mindset जरूरी नहीं है. कुछ लोग बने जॉब के लिए, जो अच्छी बात है, बिकॉज वी नीड मोर पीपल लाइक दैट. वी नीड यू गाइज. तो अगर एंटरप्रेन्योर का नहीं है आपका माइंडसेट और सब हर जगह यही बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस, डोंट गिव इन. ये देखो खुद क्या करना चाहते हो. एंड इफ यू वांट टू कैरी ऑन विद योर करियर, ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक यू. अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि पैंडेमिक सिचुएशन में क्योंकि सब लोग घर पे हैं, बहुत ही डीमोटिवेटेड हैं और शायद मोटिवेशन नाम की ना कोई चीज बची ही नहीं है लोगों के पास, चाहे कहीं भी हो, पूरी दुनिया की अगर ग्लोबली बात करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर पे इंस्ट्रक्ट है. मैंने आपको देखा है, आप बहुत पॉजिटिव रहती हैं, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन. आपकी पोस्ट में मैंने फॉलो किए हैं और यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. हाउ टू ड्रैग दैट पॉजिटिविटी
positivity from your inner soul during this I think the pandemic best way situation? to do that, I think the best way to do that, again, Kapil, आपकी बात बिल्कुल सच थी, having ambitions. अगर आपको पता है ना कि आपको इस वक्त के अंदर कुछ करना है और ऐसे नहीं बैठना फारिग, आपके गोल्स हैं, ambitions हैं, सारी चीज माइंडसेट की है कि अगर आपके ambitions हैं, आप you wouldn't care कि अगर war भी चल रही हो, आप अपना काम करेंगे. You will work, you will make sure you do the things you need to do, and you need to grow. That is my I think that is my mindset. और हर किसी का different mindset होता है. Someone is like maybe they want to start something and they're just not finding the motivation to do so. क्या पता उनके पास जरिए ना हो. और जिन लोगों के पास जरिए नहीं है, trust me guys, put yourself out there, believe in yourself. लोगों से communicate करो, बात करो, जरिए बन जाएंगे. अगर दिल से चाहते हो तो होगा. There's no way you can stop that. थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू. और अगेन आई वुड से कि पॉजिटिविटी इज अ वे फॉरवर्ड. अगर हम पॉजिटिव हैं, लाइफ में पैशन है, एम्बिशंस है, सो देयर इज अ वे फॉरवर्ड. अगर आपके पास पैशन नहीं है, सो देयर इज नथिंग फॉर यू. तो आपने शायद अपने पैशन को फॉलो किया, यू आर अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर. और आप यहाँ भी नहीं, आप यूएसए में काम कर रही हैं, जो कि बहुत टफ मार्केट है, शायद कंपटीशन पाकिस्तान से ज़्यादा है यूएसए में. सो यू डिड इट. और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी लोग भी जो आपको सुन रहे हैं वो फॉलो करें. स्पेशली मैं उन मेल्स के लिए कहना चाह रहा हूँ जो मेल होते हुए काम नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं ना कि औरत तो मजलूम होती है. हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अगर औरत कर सकती है तो वाई वी कांट. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. बाय. You're welcome. It's always a pleasure speaking to you. Goodbye. थैंक यू. बाय.